Good morning, students. Today we are going to discuss about your chapter 9, that is reproduction in animals. Reproduction means the process of producing copies or offsprings. Types of reproduction. There are two types of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction means only one parent is able to reproduce. जिस reproduction में single parent रिप्रोड्यूस होता है उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. लाइक हाइड्रा, यीस्ट, वॉर्म्स में हम लोग ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड और ऑफ सेम स्पीशीज. एक ही वर्ग का टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड लाइक दिस रिप्रोडक्टिव सेल्स, दिस आर नोन एज, एंड ऑल्सो गैमेट्स भी कहते हैं हम लोग. Now, sexual reproduction in animals. Animals and human beings, each parent produces reproductive cells called gametes. The male gamete is sperm and female gamete is egg or ovum. So, sexual reproduction हम लोग animals में and human beings में highly developed organisms में हम लोग देख सकते हैं. And each parent जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म होता है एंड दोज आर नोन एज गैमेट्स. एंड दीज गैमेट्स आर नथिंग बट द मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म बोलते हैं एंड फीमेल गैमेट को ओवम और एग. देन ऑर्गेनिजम्स विथ वन सेक्स ऑर्गैन. कोई भी प्राणी में दैट इज ओनली वन गैमेट या सेक्स ऑर्गैन, दैट मीन्स ओनली वन रिप्रोडक्टिव सेल रह गया तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं. लाइक एग्जाम्पल फ्रॉग्स, फिश, कॉकरोचेस, रेप्टाइल्स, हाईली डेवलप्ड एनिमल्स. Now next, organisms with both sex organs in one body. That means एक ही organism में both gametes रह गए तो उनको हम लोग hermaphrodites और bisexual बोलते हैं. Like earthworm, केचुआ जो है, and leech, ऐसे organisms में हम लोग bisexual देख सकते हैं. Then next, fertilization. What is fertilization? The process of fusion of sperm and ovum forming zygote is known as fertilization. This is of two types: external fertilization and internal fertilization. External fertilization means fusion takes place outside the female body, like frogs, etc. And internal fertilization means fusion takes place inside the body of female. So that's why it is known as internal fertilization. Example, birds, cows, humans, etc. Now, sexual reproduction in humans. Two reproductive systems are there in humans: male reproductive system and female reproductive system. Male reproductive system includes testes, vas deferens, urethra, glands, and penis, whereas female reproductive system includes ovaries, fallopian tubes or oviduct, which is also known as uterus, or womb, which is also known as cervix and vagina. Whereas fertilization in humans, the fertilized egg is called zygote, and zygote is developed into embryo. When all the body parts can be identified, it is known as fetus. Fetus ban jayega. Then fetus, when fully developed, it becomes a baby. Now, artificial fertilization or test tube babies. That means fertilization takes place in a glass dish. That means lab में ग्लास डिश में सब जब फर्टिलाइजेशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बोलते हैं. लाइक सॉल्ट सॉल्यूशन के मदद से वो भी. एंड टू फर्टिलाइज एंड प्लांटेड इन द विमेंस यूटेरस. फिर विमेंस के वोम्ब और यूटेरस में प्लेस किया जाता है उसको. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं हम लोग, बिकॉज इन द लैब इट इज़ टेकिंग प्लेस, लैब में होता है. दैट्स वाई IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है. द नेक्स्ट, viviparous. Viviparous means the animals which give birth to young ones. Example, cow, buffalo, cat, humans, etc. So these give birth to young ones directly. And oviparous means, ovi means egg. The animals which lay eggs later develop to young ones, like amphibians, lizards, fishes, etc. What are amphibians? Amphibians means animals जो पानी में and also जमीन में रहने वालों को हम लोग amphibians कहते हैं. Land and water. Now next, metamorphosis. What is metamorphosis? Metamorphosis is nothing but ड्रास्टिक चेंजेस होता है इसमें. दैट मीन्स बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है जब बर्थ से लेके एडल्ट होने में.
सो उस प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं एंड दिस कैन बी सीन इन फ्रॉग्स, बटरफ्लाई एंड सिल्क वॉर्म्स इन दीज ऑर्गेनिजम्स. सो लेट्स गेट इन टू द पिक्चर नाउ. सो इस पिक्चर में देख लिया तो आप लोग देख सकते हैं फ्रॉग का जो अंडे है, एग्स है, वो कन्वर्टेड टू टैडपोल. टैडपोल को हम लोग लार्वा भी बोलते हैं एंड इसका पूंछ भी है, टेल भी है लाइक टर्टल जैसा इसका पूंछ है. एंड बढ़ते बढ़ते हेड अपीयर्स, सिर बनता है एंड देन धीरे धीरे पूंछ गायब हो जाता है. दैट मीन्स एडल्टहुड में पहुंचने के बाद फ्रॉग का टेल भी नहीं है, तो बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गया. दैट मीन्स ड्रास्टिक चेंज आ गया, परिवर्तन ज़्यादा हुआ है. तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. एंड देन नेक्स्ट, इवन हम लोग बटरफ्लाई के बारे में पढ़ लिया तो भी इधर भी एग जो है वो कैटरपिलर बन जाता है फर्स्ट, एंड देन कैटरपिलर से क्राइसेलिस बन जाता है. दैट मीन्स प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है वो उसके सलाइवरी ग्लैंड के मदद से, धूप से एंड गर्मी से या ठंड से बचने के लिए ऐसे कवरिंग बनाते हैं. एंड फेवरेबल कंडीशंस आने के बाद फिर वो बाहर आ जाता है. कैटरपिलर जो है वो कुछ दिन के बाद emerges out, come out, that means comes out. तो वो भी कैटरपिलर से बिल्कुल अलग दिखता है जो बटरफ्लाई है. सो लाइक दिस, दैट मीन्स डिफरेंट परिवर्तन ज़्यादा आ गया. सो उस परिवर्तन को, ड्रास्टिक चेंज को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. द नेक्स्ट, लेट्स गेट इन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स में हम लोग बाइनरी फिशन देखते हैं, बडिंग, मल्टीपल फिशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, सो मेनी प्रोसेस आर देयर. But here we are going to study about binary fission and budding. So what is binary? Binary means two equal fission halves. दोनों इक्वल हाफ्स बनते हैं बाइनरी फिशन में. लाइक एमीबा में, पैरामीशियम में हम लोग, या कुछ बैक्टीरिया में हम लोग ये प्रोसेस देख सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, पहले पेरेंट सेल जो है स्प्लिट्स इनटू न्यू वंस. फर्स्ट जो एमीबा है वो न्यूक्लियस से शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस डिवीजन से शुरू हो जाता है. न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है, देन साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, देन लास्टली डॉटर एमीबा आर फॉर्म्ड. 2 डॉटर एमीबास फॉर्म होता है. देन आफ्टरवर्ड्स कुछ दिन के बाद ये डॉटर सेल्स जो है वो एडल्ट बन जाता है. अगेन दे बिकम्स द पेरेंट एंड अगेन दिस प्रोसेस goes on and also the reproduction takes place continuously like this. So next, budding. बडिंग इज़ नथिंग बट लाइक एन आउटग्रोथ. एक छोटा सा आउटग्रोथ निकल आता है पेरेंट के बॉडी से. दिस इज़ नोन एज बड. एंड ये बड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा. एंड देन वंस फेवरेबल कंडीशंस पास होने के बाद, दैट मीन्स फेवरेबल कंडीशंस रीच होने के बाद डिटैचमेंट हो जाता है. डिटैचमेंट मीन्स अलग हो जाता है पेरेंट बॉडी से. डॉटर सेल या डॉटर बॉडी अलग होने के बाद फिर ये अपना ज़िंदगी, इंडिविजुअल लाइफ जिएगा. सो लाइक दिस बडिंग इज सीन इन yeast like a fungi and hydra, like this. In these organisms we can see in microorganisms, unicellular microorganisms. The next, cloning. What is cloning? Cloning means the production of same copy, exact copy, like a xerox copy जैसा या फोटोकॉपी जैसा हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को या एक बॉडी पार्ट को, एक अंग को या एक सेल को हम लोग इस प्रोसेस से पा सकते हैं. लैब में, ये भी लैब में प्रोसेस होता है. लाइक इधर एग्जांपल है, एक डॉर्सेट शीप में से मेमोरी सेल्स ले लिया, देन उसका सेल्स में से न्यूक्लियस को हटा दिया, देन आफ्टरवर्ड्स एक ब्लैक फेस ईव को ले लिया एंड उसका ओवम जो है उसको ले लिया. एंड ओवम में ये जो डॉर्सेट शीप का न्यूक्लियस को प्लेस कर दिया इलेक्ट्रोफ्यूजन के मदद से. देन प्लेस होने के बाद, इंसर्शन होने के बाद, ये न्यूक्लियस जो है वो डॉली नाम से, दैट मीन्स एक शीप फॉर्म में एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है इससे. सो दैट ऑर्गेनिज्म्स नेम इज डॉली. डॉली रखा गया है साइंटिस्ट लोग ने. सो द डॉली इज द फर्स्ट एनिमल विच इज प्रोसेस्ड थ्रू क्लोनिंग. क्लोनिंग के मदद से पाया है हम लोग. सो लाइक दिस क्लोनिंग इज डन.